Good morning, dear students. Hope you are enjoying your study. I am trying to be very much practical with you. यानी कि मैं आपको थोड़ा एक्टिविटी के साथ कुछ थोड़ा बहुत बताना चाहता हूं. Detailed when you will rejoin the school after the COVID-19, then again we will discuss, not in details, but yes, this work done by we people will be very important for us. So don't miss these lectures, don't miss these videos. Please see once, twice and try to give the answers what I am putting to you. जो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो आप स्टडी करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होगा. We will not be having that much time. Okay, we will try to cut short our other activities. हम स्कूल के अंदर फंक्शंस ये वो, लेकिन फिर भी क्या है, उतना टाइम शायद इस एकेडमिक ईयर में हमें नहीं मिल पाएगा कि हम उतना टाइम क्लास में डिवोट कर सकें. सो प्लीज गो थ्रू दीज lessons through video once, twice, thrice at home as and when you get time. I'm not putting these things online which some other schools are doing. उससे क्या होता है, at that particular time you may or may not be in a position to watch. I am sending this on a YouTube channel and all that through some link. You can, as and when you are having time, you can enjoy. You can enjoy the study. Okay, so let's carry on. हम आगे बढ़ते हैं. हम अपना 4th chapter कर रहे हैं, materials, metals and non-metals. Hardly within 2-3 minutes we will try to summarize what we have done so far. Please concentrate on here. Please concentrate on. और मैं एक साइड में होके, आप उधर अपना ध्यान दीजिए बोर्ड पे, मैं एक साइड पे होके आपको बताता हूं हमने क्या पढ़ा है. We have so far we have studied what is an element. Element क्या है बच्चों, which cannot be further broken down by any chemical reaction to further part. And it is made up of small atoms. The smallest part of an element is an atom. And these elements can be divided into 2 groups, metals and non-metals. Okay, all these metals and non-metals, they have certain physical properties and chemical properties. There are 7 physical properties we have studied in chemical reaction with reactivity, with reaction with oxygen, water, acid, bases, and then we have studied about the reactivity and we have gone through the displacement reaction. उसके ऊपर हमने activity भी की है. Okay, so coming to the what physical properties, उसमें हमने क्या पढ़ा, malleability, ductility, ठीक है. Then we have gone through that कंडक्टिविटी, लश है, उसकी चमक है, उसकी हार्डनेस है, सोनरस, स्ट्रेंथ, ये सारी बातें हमने उसके अंदर पढ़ी. Then we have seen the chemical properties. Reaction with oxygen. Metals जो है, they make basic oxides. Non-metals make क्या कहते हैं, acidic oxide. Okay. Then we have seen reaction with water. Sodium is very much reactive. It vigorously react with water, forming sodium hydroxide and hydrogen gas is released. ठीक है. तो इसी तरह बच्चों क्या है, so that is why we always keep sodium in kerosene. Then we have seen reaction with acid. Yes, some metals they react with the dilute acids, some metals they react with concentrated acids, and some metals even we have to heat them. We have to use paper pellets. Some catalysts we have used. We will study all these catalysts and all that in the higher classes. So generally क्या है, ये जो metals हैं they react with the अपना acids and hydrogen gas is released. And hydrogen gas we can test which gas is released by bringing a burning matchstick near that test tube and all that. There is a popping sound. We have seen, we have done the activity also. Okay. Then again bases also. Few metals they react with gases and hydrogen gas is released. ठीक है. उसमें क्या होता है बच्चों, suppose bases they react with metal. सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चों, एक बेस है. अगर हम एल्यूमिनियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, मैंने आपको इक्वेशन भी दी थी उसकी, व्हाट वी गेट सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज. Likewise, sodium zincate and then
hydrogen gas is released. Okay, but not all the metals they react vigorously or and all that with bases. ठीक है, non-metals react with bases but no hydrogen gas is released. ये भी हमने पढ़ा. Okay, then we have come to the reactivity series. मैंने आपको बताया था बच्चों, the way we go down in the periodic table, elementary chart and all that, we go down, reactivity of the metals goes on decreasing. That means sodium is at the top of the table, but no, sodium, since we are keeping in kerosene to preserve it, we are using kerosene, we are not keeping outside, because अगर हम इसे बाहर रखते हैं बच्चों तो इमीडिएटली इसको आग लग जाती है, इविगनसली रिएक्ट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर एंड मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर. ओके, सो potassium, sodium, calcium, magnesium, here we say that means reactivity is going down like this. Calcium is less reactive than potassium, magnesium is less reactive than calcium, aluminium is less than calcium, copper is less reactive than zinc and iron. And we have done the activities also. And on that day, we have done? We have taken copper sulfate and we have put zinc in that. अब देखिए उस दिन क्या था, जब मैंने आपको दिखाया था, मैंने क्या बताया था आपको, एक क्लियर एक वो सोल्यूशन बन जाएगा और नीचे इसके अंदर बच्चों क्या, जिंक के ऊपर ब्राउन कलर का क्या आ गया है, कॉपर आ गया. सिमिलरली क्या है, we have put a iron nail in the copper sulfate solution. Okay, but here you see color was to be green. I have taken 2 pics. Today I have taken 1 pic. I will be sending you. मैंने इसकी पिक ली है दोनों बीकर्स की, आपको भेजूंगा. पहले वाली भी मैंने 2-3 घंटे के बाद एक पिक ली थी, उसमें क्लियर है your bluish color copper sulfate has turned into green. I will be sending you the pics. Both the pics will be at the same place. Today I have taken the pic on that day when we have gone through our last lecture. It is clear. So if you take out this nail, you can clearly see on my hand also copper has stuck. मेरे हाथ पे भी कॉपर लग गया है. ठीक है, क्या होता है बच्चों, क्योंकि इसके ऊपर कॉपर बहुत सारा आ जाता है, स्लोली एंड स्लोली दैट कॉपर गिव्स कलर टू दैट ग्रीनिश सॉल्यूशन ऑफ what ferrous sulfate. Okay, on that day itself I have told you, okay, let me wash my hand. I will just come in. Yes, on that day. Now we have seen this displacement reaction. So yes, gold and silver and gold, Ag silver, Au gold, they are very less reactive metals. That is why they are used for making jewelry and all that. Jewelry इसकी बनती है. ठीक है, इसकी मैं अगर हमें टाइम मिला, टाइम विल परमिट, मैं आपको बड़ा एक अच्छी एक कहानी भी बताऊंगा, और आई विल लेट यू नो हाउ टू प्रोटेक्ट योर गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी. ओके, लेट्स फर्स्ट वी विल डिस्कस प्रॉब्लम्स आल्सो. 2-3 प्रॉब्लम्स आर देयर इन योर बुक. आपकी किताब में 2-3 प्रॉब्लम्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे. लेट्स फर्स्ट सी द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड यूजेस ऑफ नॉन मेटल. यस, क्या है बच्चों, one thing बच्चों, I have used symbols. 7th में भी मैंने आपको, when we have gone through our chapter acid and bases, मैंने आपको बताया था इनको रट्टा लगा लीजिए, क्रैम कर लीजिए. ठीक है, Fe stands for iron, Cu stands for copper and Al stands for aluminium. एक चार्ट उसमें एक पेज के ऊपर आपके सिंबल्स है. ओके, सो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम क्या होता है बच्चों, इन मेटल से हम यूटेंसिल्स बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं जो हमारी किचन के अंदर रेगुलरली यूज होते हैं. बच्चों पहले क्या था, इन 6th आल्सो वी हैव स्टडीड, आपने देखा होगा कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मिनरल्स, आयरन essentially required to make the hemoglobin in the blood. Okay, so it is a very, तो क्या होता था बच्चों पुराने जमाने में, आजकल तो बच्चों क्या है, वी आर यूजिंग मेनली स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स, क्रॉकरी. क्या इसे बार बार वो उसकी प्लेटिंग नहीं करवानी पड़ती. नहीं तो पहले क्या होता था बच्चों, आयरन के, कॉपर के, ओके यस, एल्यूमिनियम के बर्तन बनते थे. उस समय क्या होता था, खाना बनते हुए कुछ ना कुछ कॉपर क्या
एलिमेंट या आयरन का एलिमेंट आपके बॉडी के अंदर खाने के साथ जाएगा, विच वॉज गोइंग टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बन एंड कॉपर एंड आयरन ऑफ योर बॉडी. ओके, सो रेगुलरली बच्चों क्या होता था, इनकी हम कई बार क्या होता था, अगर हम कोई ऐसा खाना बना रहे हैं, जैसे हम सिट्रिक कोई खट्टी चीज वाला खाना बनाते हैं, तो उसमें क्या होता था, सिंस एसिड इज हैविंग रिएक्शन विद मेटल एंड ऑल दैट, तो उससे क्या होता था, हम इसकी प्लेटिंग करवाते थे, निकल प्लेटिंग करवाते थे, वो कली जिसको बोलते थे. अब तो वो बहुत जमाना खत्म हो गया, पर आई वॉज किड लाइक यू, तो ये चीजें तब चलती थी. ओके, सो यूटेंसिल्स मेनली इट इज बीइंग यूज्ड. देन कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स, आपने देखा होगा बच्चों, बिजली की तारें, जो वायर्स आपके घर, वो किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. सो वायर्स, और आपने देखा होगा जितनी आपकी वाइंडिंग है, मोटर्स वाइंडिंग है, किसकी होती है, कॉपर वाइंडिंग की. यस, एल्यूमिनियम वाइंडिंग के भी आते हैं, बट कॉपर इज गुड इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम फॉर वाइंडिंग एंड ऑल दैट. कभी भी आप बच्चों को इलेक्ट्रिकल मोटर लेते हैं, इवन एसीज परचेज करते हैं, अगर उसका जो क्या कहते हैं उसमें कंप्रेशर है, उसकी वाइंडिंग अगर कॉपर वाइंडिंग होती है, उसकी लाइफ ज्यादा होती है इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम वाइंडिंग. सो ओके, कॉपर एल्यूमिनियम, बट यस एल्यूमिनियम वायर्स आर बीइंग यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स एंड ऑल दैट. आपने देखा होगा जो मोटी मोटी केबल्स आती हैं, वो जो है एल्यूमिनियम की बनी होती है. ठीक है, नाउ अगेन एल्यूमिनियम विद अलॉय, जो उसका ड्यूरेलियम बनता है, ये जो आपकी एरोप्लेन की बॉडी है, आपके एरोप्लेन जो उड़ते हैं वो किसके होते हैं, एल्यूमिनियम के अलॉय के होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूरेलियम बोलते हैं. ठीक है, इसी तरह आयरन का अलॉय है स्टील. स्टील तो आपको कहने की जरूरत ही नहीं है, इट इज स्लोली एंड स्टेडली इट इज टेकिंग ओवर अदर थिंग्स. ओके, इट इज बीइंग यूज्ड इन सो मेनी थिंग्स. जिंक, शायद हमने 8th में हम पढ़ेंगे, यस हाँ 8th में आएगा गैल्वेनाइजेशन. 7th में भी कहीं थोड़ा बहुत हमने टच किया है शायद. गैल्वेनाइजेशन, डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल ओवर द आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग एंड करीजन. ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन. तो जिंक मेटल वहां यूज होती है. इसी तरह बच्चों क्रोमियम, आपने देखा होगा आपके साइकिल पार्ट्स, आपका हैंडल होता है साइकिल का, आपके मोटरसाइकिल के पापा के पास होगा, आपके हो सकता है आप भी थोड़ा बड़े होंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे जब तक आपको मोटरसाइकिल खरीद के नहीं देंगे पापा. ठीक है ना, तो आपका जो उसके वो रिम है, रिम के ऊपर जो आपने देखा चमकदार व्हाइट, क्या है वो, क्रोम प्लेटिंग है. क्रोम क्रोमियम प्लेटिंग. उससे क्या होता है, क्रोम इज नॉन रिएक्टिव विद वाटर, मॉइस्चर एंड ऑल दैट. इट डजंट, उसको रस्ट नहीं लगती, जंग नहीं लगता. अदरवाइज क्या होता है, हम देखते हैं बच्चों, अगर लोहे का टुकड़ा बाहर पड़ा रहता है, इट गेट रस्टेड. तो लोहे के ऊपर, आयरन के ऊपर जो प्लेटिंग, जिस तरह लोहे के ऊपर हम जिंक की प्लेटिंग करते हैं, इसी तरह जो लोहे के ऊपर, आयरन के ऊपर जो क्रोमियम की प्लेटिंग है, उससे हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं. सिल्वर, गोल्ड, यस, ज्वेलरी. ओके, बहुत शौक होता है, जितनी भी गर्ल्स हैं बड़ी खुश हो रही होंगी, सर ने बात की ज्वेलरी की. यस, ओके, यू विल एंजॉय दिस व्हेन यू विल गेट एसिड एंड ऑल. ओके, एसिड मतलब थोड़ा और बड़ा होने के बाद. एंड सिल्वर, गोल्ड, क्यों, रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर गोल्ड सबसे नीचे है टेबल में, मिनिमम रिएक्टिव है. आपने देखा होगा बच्चों, गोल्ड आइटम, सिल्वर की आइटम आप आज खरीदते हो, 5, 7, 10 साल के बाद वैसी की वैसी रहती है. यस, उसके ऊपर थोड़ी बहुत कहीं यानी डस्ट कह लीजिए आप, या कुछ आपके जो वो थोड़ा सा उसका जो है ना, उसमें शाइन के अंदर हल्का फुल्का चेंज आती है. दैट यू कैन रिमूव बाय यूजिंग योर टूथपेस्ट, और इवन बाय हल्का आप सॉप लेके, ब्रश जो आपका टूथब्रश वेस्ट है उसके साथ हल्का आप उसके साथ रब करके, जैसे हम अपने दांत साफ करते हैं, यू कैन. यस, और मैं आपको सब एक बताऊंगा अगर टाइम परमिट किया, क्या नहीं करना है गोल्ड सिल्वर के साथ. ठीक है, the displacement reaction we have seen, I have shown you this. Okay, so coming to yes, mercury कहां यूज होता है बच्चों, थर्मामीटर्स के अंदर, क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर क्या यूज होता है, मर्क्यूरी, बिकॉज इट इज वेरी मच सेंसिटिव टू हीट, टू रीड आउट योर बॉडी टेम्परेचर एंड ऑल दैट. 7th में हमने पढ़ा था क्लिनिकल थर्मामीटर.
के बारे में, हीट, तो उसके अंदर आएगा ये। तो कहा क्या यूज होता है थर्मामीटर्स के अंदर? मरकुरी। नाइक्रोम, नाइक्रोम कहां यूज होती है? नाइक्रोम कहां यूज होती है? आपके हीटिंग एलिमेंट्स के अंदर नाइक्रोम होती है। नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट्स बनते हैं। आपका हीटर है, आपके गीजर के अंदर जो हीटिंग एलिमेंट है उसमें उसके अंदर क्या यूज होती है? नाइक्रोम। लाइक टंगस्टन, बल्ब्स, अब तो बल्ब का रिवाज थोड़ा फेज आउट हो गया है, CFLI, उसके बाद LED, ठीक है, अब LED यूज होती है, ठीक है। तो मर्क्यूरी, नाइक्रोम, टंगस्टन, सो लाइकवाइज अदर मेटल्स आर आल्सो देयर। तो कहने का मतलब क्या है? बिग लॉन्ग लिस्ट मेटल्स आर बीइंग यूज्ड, लाइकवाइज नॉन मेटल्स आल्सो। सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों? ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, दे आर मेड अप ऑफ व्हाट? नॉन मेटल्स। हमारा शरीर बोलते हैं ना 5 तत्व से बना हुआ है, 5 तत्व से बना हुआ है। और जब हम डेथ भी होती है इन दिस वे और दैट वे, किसी भी तरीके से बॉडी को जलाया जाता है या दफनाया जाता है, क्या है? उस मिट्टी के बने हुए शरीर को मिट्टी के अंदर मिला दिया जाता है। आपको शायद इन आवर पंजाबीज एंड ऑल दैट, आपको मालूम है बच्चों, शायद कभी आप किसी डेड बॉडी के क्रीमेशन के साथ गए हो, उस डेड बॉडी के साथ 5 तत्व एलिमेंट्स, छोटा सा टुकड़ा सोने का, एक लोहे का, इस तरह 5 तत्व होते हैं, क्योंकि जिससे शरीर बना हुआ है वो साथ में डाल देते हैं। तो मेनली जो हमारा है प्रोटीन्स, नाइट्रोजन होती है उसमें। और सुबह सबसे बड़ी बात क्या है? कार्बन। कार्बन तो हम सुबह से उठते हैं, रात तक आपका पीछा नहीं छोड़ते। कार्बन नॉन मेटल है विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर इट इज प्रेजेंट। आप अपना सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, कोलगेट करते हो, उसके अंदर भी कार्बन है। आपका टूथब्रश भी प्लास्टिक का बना हुआ है, पेट्रोकेमिकल बना हुआ है, उसमें भी कार्बन है। आप चाय पीते हो, शुगर उसमें डलती है, उसमें भी कार्बन है। बड़ी लंबी कहानी है, एक बार कभी एक पूरा लेक्चर देंगे जब आप स्कूल में आओगे। सो एनी हाउ, कहने का मतलब क्या, आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर नॉन मेटल्स आर एसेंशियल, अदरवाइज यू कैन नॉट कैरी ऑन योर डे टू डे लाइफ। तो आपकी बॉडी नॉन मेटल से ही बनी हुई है, ठीक है। और अब हम आते हैं नॉन मेटल के यूजेस क्या है। सबसे बड़ा यूज, जिंदा रहने के लिए आपको क्या चाहिए? सांस लेना जरूरी है, ब्रीदिंग, whether it's the plant or it's an animal, breathing is must. So oxygen, breathing, nitrogen, fertilizer बनाने के लिए, पैकेजिंग, आपने कुरकुरे खाते हो, कर्ल्स खाते हो, चिप्स लेते हो, कुछ भी लेते हो, उसके अंदर जो पैकिंग मटेरियल होता है, बिकॉज नाइट्रोजन इज वेरी लेस रिएक्टिव, इट डज नॉट अलाउ फूड्स टू गेट ऑक्सीडाइज्ड और इट डज नॉट allow the food to become obsolete source. So packaging, fertilizer, yes, chlorine, इसका बच्चों ब्लीचिंग एक्शन है क्लोरीन का, ये क्लीन करती है, प्योरिफिकेशन। आपका ये जो वाटर वर्क्स के अंदर होता है क्लोरिफिकेशन, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, दिस एंड दैट, ये जो आपका वाटर वर्क्स का एक आएगा चैप्टर 7th में, शायद पढ़ा हमने 7th में, तो उसमें यस। सो प्योरिफिकेशन के लिए आयोडीन, मैंने शायद बच्चों जब हम इसकी वो लशर का हम टच कर रहे थे, फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि आयोडीन की अपनी एक चमक होती है, उसे स्पिरिट के साथ मिला के टिंचर आयोडीन मेडिसिन बनती है। लाइक सल्फर आल्सो वी आर यूजिंग, फास्फोरस आल्सो वी आर यूजिंग फॉर मेडिसिन एंड ऑल दैट, एंड सल्फर एंड फास्फोरस वी आर यूजिंग इन फायर क्रैकर्स आल्सो। एंड जो कार्बन है बच्चों, कार्बन ठीक है, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ, यू कैन नॉट think of life without carbon, but mainly it is used as a fuel. Coal, coke, charcoal, even our wood, it is having maximum carbon. And our diesel, petrol, yes, it is being used in automobile and industry and all that. It is also a what? Hydrocarbon. Hydrocarbon. जब आप थोड़ा बड़े होंगे इसके बारे में डिटेल में जब हम पढ़ेंगे, then I will let you know. Okay? So hydrocarbon. So likewise फ्यूल, इसकी बड़ी कदम क्या है? लॉन्ग हिस्ट्री है कार्बन की। मैंने आपको जैसे पहले बताया, हमें टाइम ने परमिट नहीं करना है आज
But yes, when you will rejoin the school, we will have one full lecture and I will let you know what the carbon is. Because when I was a student in +2, one of my lecturers, when he came to the class, he just started with his lecture. बड़ा बड़ा उसने C- कार्बन लिख के 40 मिनट्स वो कार्बन के ऊपर वो दिए. वो जो बच्चों है वो मैं आज तक भी वो बातें याद है एंड आई विल शेयर विद यू. anyhow, okay, so we have studied the uses of metals, non-metals, physical properties, chemical properties, reactivities. With this we almost come to the end of the topic. But now 2-3 problems are there in your book. Let us try to solve them. Okay, what are these problems? Yes, first problem, sample problem is an element react with oxygen to form an oxide. An aqueous solution of this oxide turns red litmus paper blue. कहने का मतलब क्या है? Problem is that an oxide of what? Metal. Oxide of metal. Aqueous solution. Yes. That means suppose we are having magnesium with us. It has reacted with oxygen. What we get? Magnesium oxide. And when this magnesium oxide, aqueous solution means magnesium oxide is mixed with water. What we get? We get MgOH twice. वैलेंसी है इसका +2 वैलेंसी है OH की, -1 वैलेंसी है. 7th में मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की थी. ओके, सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच टर्न्स व्हाट? रेड लिटमस ब्लू. किया था हमने एक्टिविटी. ओके, सो व्हाट इज द नेचर? प्रॉब्लम इज द एलिमेंट ए मेटल और ए नॉन मेटल? यहां क्या है बच्चों? सॉरी, मैं मेटल पढ़ गया. प्रॉब्लम पढ़ते हो इट इज नॉट अ मेटल एलिमेंट, यानी इसमें हम मैग्नीशियम नहीं लिखेंगे भाई. एलिमेंट ऑक्साइड एलिमेंट हाइड्रोक्साइड. रेड लिटमस टू ब्लू करता है वो. इट इज ए मेटल और नॉन मेटल, ये बताना है हमने. हम in the start we will not take a metal. हमें ये बताना है. what we have studied in the reaction with oxygen, chemical reaction में, metal makes basic oxide. Metal makes basic oxides. तो रेड लिटमस को ब्लू कौन करता है? बेस. That means the given element is metal. The given एलिमेंट इज मेटल. कहने का मतलब क्या? प्रॉब्लम थी कि हमें एक एलिमेंट है, उसका जो रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, वो जो उसका ऑक्साइड बनता है, उसका एक्वस सोल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू करता है. तो वो क्या है? रेड लिटमस को कौन ब्लू करता है? बेस. क्यों? मैंने आपको बताया था BRA, भीमराव अंबेडकर. ब्लू टू रेड इज एसिड एंड रेड टू ब्लू इज बेस. रेड टू ब्लू. ओके, सेकंड प्रॉब्लम है बच्चों. हम प्रॉब्लम ध्यान से पढ़ेंगे. मैंने एलिमेंट पढ़ दिया था वो, सॉरी फॉर दैट. व्हाई इज आयरन नॉट डिपॉजिटेड ओवर ए कॉपर प्लेट व्हेन द कॉपर प्लेट इज डिप्ड इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन? कहने का मतलब क्या है कि कॉपर प्लेट के ऊपर आयरन क्यों डिपॉजिट नहीं होता जब कॉपर प्लेट को हम आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में? दैट मींस व्हाट वी आर हैविंग आयरन सल्फेट प्लस कॉपर. अब रिएक्टिविटी सीरीज देखो बच्चों. रिएक्टिविटी सीरीज, कॉपर क्या है? आयरन से लेस रिएक्टिव है क्योंकि नीचे है, वो डाउनवर्ड है, बॉटम की तरफ है. कॉपर इज लेस रिएक्टिव, सो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन.
कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन। तो आंसर क्या हुआ बच्चों? कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, सो कॉपर इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू फॉर्म फ्री आयरन, जो उसको ऊपर प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाए। ओके, तो इसकी आप लिखना चाहोगे, लिख सकते हो, नो डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 3 of your book. Consider the following displacement reaction. Okay, consider the following displacement reaction. कौन कौन सी है भाई? कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। वी नो आयरन इज above the table, so it is more reactive than copper. What it will be there? What we will get? Iron sulfate and copper will be eliminated. That means reactivity will, displacement will take place. Iron sulfate plus zinc, iron sulfate plus zinc, and what we get? We get zinc sulfate plus iron. On the basis of these two displacement reaction, find out which is the most reactive metal and which is the least reactive metal out of copper, iron and zinc. Copper, iron and zinc. ठीक है? अब क्या है बच्चों? आयरन सल्फेट, जिंक इसमें से इसको रिमूव कर रहा है। देखिए, आयरन इज डिस्प्लेसिंग कॉपर एंड फ्रॉम दिस, ये जो सोल्यूशन बन गया हमारे पास आयरन सल्फेट का, उसमें से आगे जिंक इज डिस्प्लेसिंग व्हाट? आयरन। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? आयरन कैन डिस्प्लेस कॉपर बट जिंक कैन इवन डिस्प्लेस आयरन। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यानी कि आयरन कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और फेरस सल्फेट सोल्यूशन बन रहा है, उसको फिर क्या है? जिंक उसको आयरन को भी निकाल पा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? हु इज मोर रिएक्टिव? मोस्ट रिएक्टिव Zn, then comes iron, then comes copper। यही देख लीजिए आप, Zn पहले है, आयरन फिर है, कॉपर उसके बाद है, बीच में लेड भी आता है, कॉपर है। तो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज। So, zinc is the highly reactive, iron is less than zinc, and copper is even less than zinc and iron. Zinc and iron. Okay. Fourth problem. Saloni took a piece of burning charcoal and collected the gas evolved in a test tube. How will she find the nature of a gas? Write down the word equation. क्या बच्चों? इसका क्या आंसर है? एनसीईआरटी की बुक में से लिया हुआ क्वेश्चन है। टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डिसॉल्व इट इन वाटर, टेस्ट द एक्वस सोल्यूशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद ब्लू लिटमस। क्या बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था? कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर, व्हाट वी गेट? कार्बोनिक एसिड। व्हाट वी गेट? कार्बोनिक एसिड। ओके, CO2 plus water, what we get? H2CO3, it is carbonic acid. What it will do? Why Bhim Rao Ambedkar, it will turn the blue litmus to red, and we will see that oxide जो है aqueous solution के साथ जो acid बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? Given gas is what? Carbon dioxide. The given gas is carbon dioxide. Okay. To find the nature of carbon dioxide gas, dissolve it in water, test the aqueous solution of carbon dioxide gas with blue litmus paper and red litmus paper. The aqueous solution of carbon dioxide gas will turn blue litmus paper to red, showing that carbon dioxide is acidic in
नेचर। तो एसिडिक इन नेचर, वो भी अगर ये पूछे वेदर द गिवन थिंग इज ए मेटल और ए नॉन मेटल, एसिडिक कौन बनाते हैं? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल्स क्या बनाते हैं? बेसिक ऑक्साइड। और नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं? एसिडिक ऑक्साइड। तो कार्बन का जो ऑक्साइड है वो क्या है? व्हाट? एसिडिक इन नेचर। क्या है? एसिडिक इन नेचर। ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ योर टॉपिक। मेरे ख्याल में टाइम भी हो गया बच्चों। लेट्स एंजॉय योर स्टडी एंड नेक्स्ट वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। थैंक यू।